Hello class. In this video lecture, we will start a new topic from the chapter Metals and Non-Metals. This topic will be the extraction of metals, in which we will start to study about the occurrence of metal and their different type of methods to extract them from their sources. In the last videos, we have discussed about the physical and chemical properties of metals, and also for the different type of bonds like covalent and ionic bonds which are used to form the compounds of metals and non-metals. Okay, in this video we will start the new topic in which we will see that how the metals are occurring. Okay, so in the earth crust, metals are occurred mostly in the upper layer of the earth crust. Okay, so we can say that the earth crust is the major source of metals. One more source for the occurring of metals, that is seawater. Seawater also contains the salts of metals like sodium chloride, sodium, magnesium, and different type of metals in the form of their chlorides. For example, we can say that the sodium metal is found in seawater in the form of sodium chloride, and magnesium in the form of its chloride as MgCl2. Okay, most of the metals are reactive, so they occurred in their combined state. जैसा कि आप जानते हैं कि मेटल्स में सारी मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती, केवल कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, एंड सम ऑफ देम आर मॉडरेटली रिएक्टिव and other are less reactive, and at last some of them are least reactive metals. So we can divide the metal family into three type of metals. Some of them are most reactive, others are moderately reactive, and very few of them are less or least reactive. Okay, so जितनी भी metals बहुत ज़्यादा reactive होती हैं वो अपने किसी न किसी कंपाउंड की फॉर्म में पाई जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि उनके क्लोराइड्स या उनके हाइड्रोक्साइड्स या उनके अदर टाइप ऑफ सॉल्ट्स. ओके, सो वी कैन से दैट most of the metals are quite reactive, hence they do not occur as the free or native state. Okay, so most of the metals are found in the form of their compounds. ठीक है, and this state is also known as the combined state of that metals. Okay, now compounds of metals are found in their oxides. अब जैसे कि अगर हम बात करें कि मेटल्स के कंपाउंड कौन कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं, तो पहला जो टाइप ऑफ कंपाउंड है दैट इज़ द ऑक्साइड्स ऑफ देयर ऑफ द मेटल्स. फॉर एग्जांपल, जैसे जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड अदर ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स. द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड इज द मेटल कार्बोनेट्स. मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में भी पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, जिंक कार्बोनेट, MgCO3 and other carbonates of metals. The next type of compound is sulfides, chlorides, etc. ये सारी मैंने आपके सामने डिस्कस किए. ये टाइप ऑफ कंपाउंड जिसमें कि मेटल्स कैन बी फाउंड, जैसे ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, सल्फाइड्स एंड क्लोराइड्स. ओके, इन these compounds the metals are present in the form of positive ion and cations. जैसा कि आपको पता है कि मेटल हमेशा आयनिक कंपाउंड फॉर्म करती हैं, तो जब भी मेटल इन फॉर्म्स में पाई जाएंगी, कौन कौन सी फॉर्म्स? ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, सल्फाइड्स एंड क्लोराइड्स, तो इसमें हमेशा ये मेटल्स आयन्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगी, जिसमें मेटल्स तो पॉजिटिव आयन बनाएंगे और उनका जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा that will form the anion. Okay, only few
और लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट मेटल्स। ठीक है, केवल बहुत थोड़ी सी मेटल्स ऐसी हैं जो कि फ्री स्टेट में पाई जा सकती हैं। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एंड और इसमें भी मैं ये कह सकता हूँ कि कॉपर एंड सिल्वर आर द टू मेटल्स which can found in both as well as combined state और native state। देखिए आप कि कॉपर एंड सिल्वर मेटल्स अकर इन फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। तो जब अगर हम कॉपर और सिल्वर की बात करें तो कॉपर एंड सिल्वर मेटल कैन बी फाउंड इन फ्री स्टेट एंड एज वेल एज इन देयर कंपाउंड। ओके, नाउ all the metals which are placed above the copper in the reactivity series are found in nature only in the form of their compounds। अब आपने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी मेटल्स की, जिसमें मेटल्स उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर एक सीरीज़ में रखी गई हैं और जो भी मेटल पहले आती है वो नीचे वाली मेटल को रिप्लेस कर देती है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी मेटल्स हैं वो अपनी रिएक्टिविटी के बेसिस पर अपने कंबाइंड या नेटिव फॉर्म में पाई जाती हैं। इसमें हमने ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखना होगा दैट ऑल द मेटल्स विच आर प्लेस्ड अबव द कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर फाउंड इन नेचर ओनली इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। मतलब इस रिएक्टिविटी सीरीज में जितनी भी मेटल्स कॉपर के ऊपर रखी हुई हैं तो वो सारी मेटल्स उनके कंपाउंड्स की फॉर्म में ही पाई जाएंगी। ठीक है, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर दैट मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स एंड ओर क्या हैं? ठीक है, तो जब अब अगर हम बात करें मेटल्स की तो मेटल्स हमेशा मिनरल्स या ओर्स की फॉर्म में ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो मेटल्स के सोर्स की अगर हम बात करें तो मिनरल्स आर द सोर्स ऑफ मेटल्स। वन क्वेश्चन अराइज्ड फ्रॉम हियर दैट व्हाट आर द मिनरल्स एंड व्हाट आर द ओर्स। मिनरल्स क्या हैं और ओर्स क्या हैं, यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि मिनरल्स वो नेचुरल मटेरियल हैं जो जिनमें मेटल्स पाई जाती हैं। ठीक है ना, the natural materials which contain the metals in the form of their compounds, these are known as minerals। तो और क्या है? और की अगर हम बात करें तो और मिनरल की वो फॉर्म है जिसमें मेटल्स को हम उन मिनरल्स में से जिनको हम और बोलना चाहते हैं उनमें से हम प्रॉफिटेबल अमाउंट में मेटल को कलेक्ट कर सकें। ठीक है, मिनरल्स वो सारे पदार्थ, वो सारे सब्सटेंस हैं जिसमें से मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या जिनमें मेटल पाई जाती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ बच्चों कि अगर हम बात करें एप्पल की तो आपने सुना होगा कि एप्पल में आयरन, एप्पल इज़ द सोर्स ऑफ आयरन। ठीक है ना, तो अगर एप्पल में आयरन का सोर्स है तो क्या हम एप्पल में से इतना आयरन निकाल सकते हैं कि उससे एक एप्पल से हम छोटी सी पिन या छोटी सी सुई या छोटी सी एक कील भी बना सकें? आंसर होगा नहीं। इसका मतलब मेटल्स जो इन एडिबल आइटम्स में जो पाई जा रही हैं वे बहुत ही ट्रेस अमाउंट में ही पाई जाती हैं। ट्रेस अमाउंट मीन्स बहुत ही ना के बराबर अमाउंट्स में। ठीक है, पार्ट पर मिलियन जिसको हम बोल सकते हैं ppm। लेकिन अगर हम बात करें ओर्स की तो ओर्स इज द actual source of metal from which the metals are collected into the profitable amount। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? those minerals which from which the metals can be extracted in conveniently and profitably are called ores। मतलब ये हुआ कि मिनरल्स की वो फॉर्म जिसमें से हम मेटल्स को प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली हम कलेक्ट कर सकें, दैट इज़ नोन एज द फॉर्म ऑफ
मिनरल विच इज ऑल्सो नोन एज द ओर्स। ओके, लेकिन यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि जो भी पार्ट ऑफ अर्थ जिसमें से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें इज नोन एज मिनरल। तो क्या सारे और मिनरल होंगे? तो आंसर होगा नहीं। कि यहाँ पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑल द ओर्स आर मिनरल्स, सारे और मिनरल है क्योंकि उन सब में से मेटल पाई जाती हैं। लेकिन क्या सारे मिनरल और होंगे? सारे मिनरल और इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि सारे के सारे मिनरल में से हम मेटल को प्रॉफिटेबल अमाउंट में कलेक्ट नहीं कर सकते। प्रॉफिटेबल अमाउंट्स मीन्स उसमें से हमें लॉस कम हो और मेटल की कलेक्शन ज़्यादा हो। ठीक है, तो ऐसा पार्ट ऑफ अर्थ जिसमें से मेटल का कलेक्शन ज़्यादा हो, प्रॉफिटेबल अमाउंट में हो, दैट इज नोन एज ओर। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके थ्रू बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अपने स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई कीजिए दैट ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। तो इसके लिए आपका जो आंसर होगा वह यही हो सकता है कि मिनरल्स की वो फॉर्म जिसमें से मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर सकें कन्वीनियंटली यानी इजीली एंड इन द प्रॉफिटेबल अमाउंट, दैट इज नोन एज द ओर्स। ठीक है, तो ओर्स के बारे में आप यही लिखेंगे। और मिनरल्स क्या है? मिनरल और द ऑल द नेचुरल थिंग्स फ्रॉम विच इन विच मेटल्स आर फाउंड, दीज आर नोन एज मिनरल्स। अगर आप इस तरीके की बात करें तो आप देखेंगे कि वाटर में भी कुछ मेटल्स पाई जाती हैं, कैल्शियम पाई जाती है और मैग्नीशियम पाया जाता है नेचुरली अकर्ड वाटर में, तो उसको हम मिनरल वाटर भी बोल देते हैं, वाटर विद मिनरल, जिसकी वजह से वाटर में टेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन वाटर इज नॉट द सोर्स ऑफ प्रॉफिटेबल सोर्स ऑफ ऑल द मेटल्स विच आर फाउंड इन दैट। ओके, यहाँ पर हमने कुछ सोर्स ऑफ मेटल्स जिनको हम ओर बोलते हैं, कुछ मेटल के हम ओर्स का एक सीरीज़ बना रखी है हमने। यहाँ पर ये देख सकते हैं इस तरीके से कि सोडियम का ओर रॉक सॉल्ट होता है विच हैज़ द फार्मूला NaCl, जो कि आप कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं डेली अपने खाने में, दैट इज़ नोन एज NaCl और सोडियम क्लोराइड विच ऑल्सो नोन एज रॉक सॉल्ट। इट इज़ द ओर ऑफ सिंपल ओर ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगर आपको ओर अपने घर में ही देखना हो तो आप सॉल्ट देख लीजिए, दैट इज़ द ओर ऑफ सोडियम मेटल। ओके, नाउ द नेक्स्ट मेटल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो ओर है उसका नाम होता है बॉक्साइट और इसका फार्मूला होता है Al2O3.2H2O। केमिकल नेम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। द नेक्स्ट मेटल इज मैग्नीज। मैग्नीज का ओर है पायरोलूसाइट, द फार्मूला इज MnO2 एंड द नेम इज मैग्नीज डाइऑक्साइड। जिंक दो फॉर्म में पाया जाता है, पहला कार्बोनेट की फॉर्म में, ये देखिए कार्बोनेट की फॉर्म में पाया जा रहा है, एंड सेकेंडली इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ जिंक सल्फाइड। ठीक है, जो कार्बोनेट की फॉर्म वाला जो जिंक ओर है दैट इज नोन एज कैलामाइन। ठीक है, और एंड इट हैज़ द फार्मूला जिंक कार्बोनेट और ZnCO3। जो जिंक सल्फाइड की फॉर्म में पाया जाता है इट हैज़ द कॉमन केमिकल नेम जिंक सल्फाइड एंड द कॉमन नेम इज जिंक ब्लेंड एंड हैज़ द फार्मूला जिंक यानी ZnS। ओके, सो दीज आर द सम कॉमन ओर्स फ्रॉम द कॉमनली फाउंड मेटल्स। आपको बुक्स में और सारे ओर्स भी मिल सकते हैं अदर मेटल्स के, यू कैन फाउंड फ्रॉम द बुक फॉर देम। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब बात ये आती है कि हम इन मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्टिंग क्या है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना क्या कहलाता है, व्हाट इज़ द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल्स सिंपली इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम इट्स ओर बाय यूजिंग द डिफरेंट मेथड्स इज नोन एज सिंपली द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके हम ओर्स में से जिस तरीके से मेटल्स को फाउंड करते हैं उसको हम
निकालते हैं, द मेथड इज नोन एज सिंपली द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है। नाउ अब इन वेरियस प्रोसेसेस को हम कंबाइनली क्या कह सकते हैं? द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स आर फ्रॉम देयर ओर्स इज ऑल्सो नोन एज द मेटलर्जी। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है मेटलर्जी, जिसको हम आगे भी यूज़ करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सट्रैक्शन एंड मेटलर्जी हैव द सेम मीनिंग। मेटलर्जी मीन्स एक्चुअली द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। अब यहाँ पर एक हमने एक एक्टिविटी सीरीज़ को हमने यहाँ पे लिया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, दिस इज़ द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, जिसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स आर अरेंज्ड इन द वे दैट हाउ मच रिएक्टिव दे आर। ठीक है। तो जो भी मेटल जितनी ज़्यादा रिएक्टिव है उसको हमने अपर साइड में रख के एक एक्टिविटी सीरीज बना ली है, और इस सीरीज़ को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ठीक है। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द ग्रुप ऑफ सम रिएक्टिव मेटल्स containing sodium, potassium, calcium, magnesium and aluminum, and the method of extraction of these metals is electrolysis of molten chlorides and oxide of these metals. ओके अगर हम इन मेटल्स का ऑक्साइड और क्लोराइड कहीं से हम कलेक्ट कर लें और इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, तो हम इन मेटल्स को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट मेथड इज फॉर द मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, iron, lead and copper, to which if we reduce these metals from their oxide, then we can obtain these metals. Okay, the reduction of the oxide of these metal from with the help of carbon is also known as smelting. इन सारे methods को हम अभी next period में स्टडी करेंगे डिटेल में। यहाँ पर आपको एक कॉमन फिगर मैंने दे दी है कि किस तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज़ की मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप है कॉपर एंड मरकरी का। ये मेटल्स थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होती हैं, एंड बाय हीटिंग द सल्फाइड ऑफ दीज मेटल्स इन एयर और रिडक्शन बाय द हीट अलोन वी कैन एक्सट्रैक्ट दीज मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको और बतानी है कि कॉपर एंड सिल्वर can be found in free state and as well as in the combined state of these metals. Okay, the last group of these metals is of least or less reactive metals. Least or less reactive metals for example silver, gold and platinum. These metals are found in the native state of from their ores. ये अपने नेटिव स्टेट में या फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स एंड दे कैन नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड विद द अदर केमिकल्स। ओके, नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स बाय विच वी कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे दैट विल बी द एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स प्रेजेंट इन द लो एक्टिविटी सीरीज। ठीक है। हमें जिस वे में इन मेथड्स को स्टडी करना है, सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे दैट विल बी एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स प्रेजेंट इन लो इन एक्टिविटी सीरीज, मतलब जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, एंड देन मॉडरेट और मिडिल एक्टिविटी सीरीज, एंड देन द एक्सट्रैक्शन मेटल्स प्रेजेंट हाई अप इन द एक्टिविटी सीरीज, मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, now class we will start to study the common methods which are used to extract each and every metals. यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपको समझनी चाहिए, that for every metal there is no common method by which we can extract the metal from their ore for or used for all metal. लेकिन कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिनको हमें ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते समय उनको यूज़ करना ही पड़ेगा। मतलब अगर मैं समराइज ही आपको बोल दूं कि यहाँ पे कोई भी एक मेथड ऐसा नहीं है
जो कि सारी मेटलर्जी ऑफ मेटल्स में यूज हो जाए। अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग मेथड यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज डिफरेंट मेटल्स आर फाउंड इन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। ठीक है, तो अलग अलग कंपाउंड्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग मेथड लगाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ मेथड ऐसे हैं या कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जिनको हमें ईच एंड एवरी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते समय सबसे पहले हमको यूज़ करना पड़ता है। द वेरी फर्स्ट मेथड इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें हम ओर में से मेटल का एनरिचमेंट करते हैं, मतलब उसमें से जो फालतू रेत मिट्टी कंकड़ वगैरह होते हैं उनको डिफरेंट मेथड की सहायता से हम अलग कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट मेथड इज कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। ये हमें मेथड, हालांकि ये अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग तरीके के मेथड, लेकिन फिर भी हम इसको एक कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर ऑल द मेटलर्जीज ऑफ डिफरेंट मेटल्स हम बोल सकते हैं कि इसके बाद हमें मेटल को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मीन्स प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट method which is used for each and every metal for refining and to improve the quality of the metal in the aspect of its purity. Okay, so in the next class we will study about some methods of extracting the metals. First we will study, as जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम किसका एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, द लो एक्टिविटी मेटल्स या सीरीज़ में लो एक्टिव मेटल्स को, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम जैसी मेटल्स जो कि बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव होती हैं, इनकी स्टडी से हम स्टार्ट करके और इस मेथड को, इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।